Hi everyone, it's me, your Manu Ishu, and welcome back to my YouTube channel Manu Ishu ACCA classes. So in this video, I'm going to do only least question from the financial reporting exam kit, Coplan exam kit, right? So I'm just going to do least question in this video. And if you're watching my video for the first time, don't forget to subscribe my channel and share it among your friends so that they could also have a benefit, right? Okay, so without wasting our time, let's do the question. In case it required, I will also explain the concept. ठीक है, अगर कहीं पे लगा मुझे कि ये चीज़ का concept explain करना है, so I will also do that. Okay, so question number is first 77. What the question requirement is, what amount in total would be charged to hyper statement of profit or loss for the year ended 30 September 20x4 in respect of the above transaction. Basically, the question is asking what amount should we charge on the P&L for the year in 30 September 20x4. So just I have written down the period. If the year in 30 September 20x4, the starting will be 1 October 20x3. Okay. During the year end, during the year ended 30 September 20x4, Hyper entered into two lease transaction. On 1st October 20x3, Hyper made a payment of 90,000, being the first of five equal annual payment under a lease for a item of a plant. So basically in F7 we just do the counting from the perspective of the लेसी. ठीक है, लेसर का हम लोग यहाँ पे नहीं देखते, सिर्फ लेसी का देखते हैं. वो SBR में आपका लेसी एंड लेसर दोनों का देखना होता है. सो यहाँ पे हम लेसी का अकाउंटिंग सिर्फ देखेंगे. एक बात ये याद रखना है, lease has implicit interest of 10% and the present value of total lease payment on 1st October 20x3 was 340,000. On 1st January 20x4, Hyper made a payment of 18,000 for 1 year lease of an item of equipment. ओके, सो बेसिकली यहाँ पे दो लीज है. ठीक है, एक इक्विपमेंट का एंड दूसरा प्लांट का. ठीक है, सो हमारा प्रेजेंट वैल्यू व्हाट्स अ गिवन. Let's note down the whatever the given in the question. ठीक है, so first payment, just wait, I'm getting call. Okay, so first payment 90,000. Okay, it was made on the 1st October 20x3. I will write down the date here. 1st October 20x3. Okay, so next we have a interest rate 10%. Then we have a present value of total lease payment 340,000. Okay, so now what you have to do is just have a just think for a minute. ये जो प्रेजेंट वैल्यू आपका दिया हुआ है, इट्स अ टोटल लीज पेमेंट. ओके, so question in this question it has been told the present value of total lease payment. It means जो ये first payment which you have made on the 1st October 20x3, it might have been including this amount, right? So ये तो ऑलरेडी पेड है. सो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू डिडक्ट दोज अमाउंट, और वो डिडक्ट करने के बाद 90,000 घटा दो. सो व्हाट वी विल गेट, okay, so this is our present value of the lease payment that has not been paid yet. Okay, so ये तो दूसरा क्वेश्चन है, इसको अभी फिलहाल छोड़ते हैं, बाद में देखेंगे. अब लीज टर्म, व्हाट इज द लीज टर्म हियर. लीज टर्म इज ऑफ 5 years. ठीक है, ओके, सो
अब इस 5 years में दे हैव ऑलरेडी पेड द फर्स्ट पेमेंट, यहाँ पे बोल रहा है ना हाइपर मेड ए पेमेंट ऑफ 90,000 बीइंग द फर्स्ट ऑफ 5 इक्वल एनुअल पेमेंट अंडर रिलीज ऑफ एन आइटम ऑफ प्लांट, ठीक है। सो अब यहाँ पे पहले हम लोग लीज लाइबिलिटी निकालते हैं, लीज लाइबिलिटी and next is ROUA means right of use assets, okay. So what is the lease liability? Lease liability basically is the present value of lease payment that has not been paid yet. हम लोग जब initially lease को record करेंगे it will be the amount of मतलब amount जो equal होगा आपका present value of lease payment that have not been paid yet. So what is the amount? 250,000, ठीक है। इनिशियली जब हम लोग एंट्री करेंगे ना लीज में कमेंट्स करने पे ये एंट्री रखेंगे, डेबिट ROUA एंड क्रेडिट लीज लाइबिलिटी, ओके। सो ये हमारा हो गया लीज लाइबिलिटी। अब हम लोग वो टेबल बनाते हैं जिसमें इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं ना, अब एक चीज़ यहाँ पे सोचने वाली बात क्या है, हम लोग को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा वेदर द पेमेंट इज एरियर्स और एडवांस, ओके। सो क्या लगता है व्हाट इज वेदर द पेमेंट इज इन एरियर्स और इन एडवांस? सो बेसिकली इस एडवांस में ही है, यहाँ पे क्लियरली बोल रहा है कि 1 अक्टूबर को उसने पे किया और ये 5 इंस्टॉलमेंट में से ये एक इंस्टॉलमेंट ये है और 5 years का लीज है। सो एडवांस का केस है, सो यहाँ पे पेमेंट इन एडवांस, ठीक है। सो टेबल में क्या होगा, पहले ब्रॉड फॉरवर्ड अमाउंट, सॉरी पहले ईयर brought forward, then payment, okay, then subtotal, and then we will charge the interest, then balance carry forward. ओके, सो स्टार्टिंग में अमाउंट हमारा टोटल लीज लाइबिलिटी कितना था, टोटल लीज पेमेंट हमारा 340,000, आउट ऑफ विच द कंपनी नहीं क्या नाम है, क्या चीज़ का नाम है, हाइपर पेड 90,000। सो व्हाट इज द रिमेनिंग अमाउंट, रिमेनिंग हमारा हो जाएगा 250। अब इस पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट अमाउंट इज 10%, राइट। सो हमारा जो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होगा दिस विल बी द टोटल ऑफ दिस टू, सो 275। सिमिलरली सेकेंड ईयर का भी ऐसे ही निकालेंगे 275, ऐसे करके सारे निकालेंगे। ओके, सो डन, ओके। सो बाकी का भी नहीं निकालते, क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट भी नहीं है हमारे पास उसका, ठीक है, कि निकालने का, बस सिंपली पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द अमाउंट वी विल चार्ज टू द P&L। तो पहली तो बात कौन सी ईयर की बात करें, 20x4, तो 20x4 वाला ईयर यही है, ईयर इंड, यहाँ पे डालती हूँ ईयर इंड, ठीक है। तो यहाँ पे 30 September 20x4, 30 September 20x5, ओके। सो नाउ तो 20x4 की बात करें, एक तो ये इंटरेस्ट वाला अमाउंट जाएगा P&L में, मैं बोल्ड कर देती हूँ, और क्या जाएगा, थिंक फॉर अ वाइल, और दूसरा हमारा ROU का डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन अमाउंट कितना हो जाएगा, डेप्रिसिएशन सो 50,000, सॉरी इस अमाउंट पे डेप्रिसिएशन थोड़ी होगा,
ROU तो हमारा 340 हो जाएगा ना टोटल, तो स्टार्टिंग में वो था। इसको भी फिलहाल ये कंफ्यूज ना हो, इसको डिलीट ही कर दो, बेस्ट आइडिया। यहाँ पे नीचे टेबल में मैंने दिखा दिया है कैसे ये 250,000 आया। ओह, सो लेट इट बी। ये आपका 1 अक्टूबर का ये है ट्रांजेक्शन। मैंने बस वो समझाने के लिए बताया था, अगर मान लो यहाँ पे टोटल नहीं दिया होता उस केस में वैसे करते हैं, बट अब हम लोग एट द स्टार्ट 1 अक्टूबर को हम लोग ये रिकॉर्ड करेंगे 340 कह के। यार क्या हो गया? ओके और अब एक और लीज लिया हुआ है। ऑन जनवरी 20x4 हाइपर मेड ए पेमेंट ऑफ 18,000 फॉर अ 1 ईयर लीज ऑफ एन आइटम ऑफ इक्विपमेंट। सो बेसिकली ये हमारा शॉर्ट टर्म लीज में कहलाएगा, बिकॉज लीज टर्म इज फॉर 12 ईयर और लेस देन 12 ईयर रहेगा तो हम लोग उसको शॉर्ट टर्म लीज में काउंट करेंगे, राइट। सो इसको हम लोग शॉर्ट लाइफ लीज कहेंगे, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, वी डोंट रिकॉग्नाइज द लीज लायबिलिटी और राइट ऑफ यूज एसेट। सिंपली हम लोग रिकॉग्नाइज क्या करते हैं, वॉट एवर लीज पेमेंट है उसको प्रॉफिट एंड लॉस में ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस पे रिकॉग्नाइज करते हैं। तो सेकेंड वाले केस में इक्विपमेंट के केस में कितना पे कर रहा है, 18,000, ठीक है, एंड इट्स फॉर ओनली 1 ईयर, ठीक है, तो 18,000 1 ईयर में पे करेगा। बट ट्विस्ट इन द सिनारियो, डेट, हैव इट लुक ऑन द डेट, ये 1 जनवरी 20x4 को लिया है, एंड व्हाट इज आवर ईयर इन 30 सितंबर 20x4 मींस 9 मंथ ही हुआ है, सो वी विल ओनली रिकॉग्नाइज द 9 मंथ ऑफ दिस 12 into 9। सो टोटल हमारा PNL में कितना चार्ज होगा, टोटल अमाउंट टू बी चार्ज्ड in PNL, ये अमाउंट प्लस डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट, ओके। सो 106500। आई होप ये क्लियर है आपको यहाँ तक। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the requirement? What is the amount to be shown within the non-current liability at the 31st October 20x3? Okay, no issue. ये भी easy है, easy है ये भी। Okay, question number is 78. Z enter into a 5-year lease agreement. So what is the lease term? Lease term is for 5 years, ठीक है। On 1st November 20x2, okay, paying 10,975 per annum, commencing on 31st October 20x3. It means start of the year is 1st November 20x2 and year end is 31st October 20x3, and जो ये Z है it's making a payment on 31st October 20x3. So what does it indicate? इसका मतलब ये है मीन्स Z इज पेइंग इन एरियर्स नॉट इन एडवांस, ओके। सो यहाँ पे हमारा पेमेंट इन एरियर का केस है। तो यहाँ पे एक टेबल जब बनाएंगे तो यहाँ पे लिख देती हूँ पेमेंट इन एरियर्स। सो ईयर डाल देती हूँ 1 2 3 4 एंड 5। आप यहाँ पे ईयर एंड खुद लिख लेना, ठीक है, मेरा बस मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कॉन्सेप्ट क्या है। सो अब हमारा एडिट के केस में टेबल का फॉर्मेट कैसा होता है, पहले ब्रॉड फॉरवर्ड अमाउंट, देन वी विल चार्ज ए इंटरेस्ट एंड देन आफ्टर दैट सब टोटल, एंड उस पे पेमेंट कितना करेंगे वो, एंड बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, ओके ओके ओके। सो आगे द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट वाज 45,000 एंड द इंटरेस्ट रेट इज 7%। सो व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट, 7%, एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट इट्स 45,000, ठीक है। सो प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, लीज लाइबिलिटी,
सो लीज लाइबिलिटी भी इतना होगा और ROUA भी इतना होगा सेम। जब लीज कमेंस्ड होगा उस दिन पे जो भी वॉट एवर द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट इज नॉट पेड, वो हमारा लीज लाइबिलिटी होगा एज वेल एज ROUA। बट ROU में सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू नहीं, बाकी मान लो कि इनडायरेक्ट कॉस्ट एंड मतलब और भी अमाउंट विच हैज़ बीन पेड बिफोर और एट द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द लीज, वो सारे अमाउंट इंक्लूड करेंगे। बट यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं दिया है। सो जस्ट आई एम वॉट एवर द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द लीज पेमेंट इज, मैं उसी को ROU में डालती हूँ। ये जब हमारा 1 नवंबर 20x2 को ये उसका हम ये मतलब जर्नल एंट्री कह सकते हो, डेबिट करेंगे ROU एंड क्रेडिट लीज लाइबिलिटी और अमाउंट 45,000 करके डालेंगे। ठीक है, तो ऐसे नहीं समझ में आता तो ऐसे समझ सकते हो। लेट मी मेक दिस थिंग क्लियर। ऊपर भी थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था शायद। ओके, सो ऑन 1 नवंबर 20x2 को हमारा कमेंस हुआ। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। सो यहाँ पे हम लोग करेंगे डेबिट ROUA एंड क्रेडिट लीज लाइबिलिटी। ठीक है, एंड अमाउंट विल बी सेम 45,000। ठीक है, अब उसके बाद एट द ईयर एंड में आके हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट पे करेंगे एज वेल एज डेप्रिसिएशन हम लोग काटेंगे और हम लोग पेमेंट करेंगे। सो इंटरेस्ट पे क्या होता है, हमारा लीज लाइबिलिटी विल इंक्रीज एंड पेमेंट करेंगे तो आवर लीज लाइबिलिटी विल डिक्रीज, और डेप्रिसिएशन वगैरह भी जो भी होगा वो ROU का वैल्यू डिक्रीज करेगा। तो वो एट द ईयर एंड में क्या होगा, जैसे ऊपर का केस था, हम लोग फर्स्ट में जैसे यहाँ पे डेबिट मैंने किया ना क्रेडिट लीज लाइबिलिटी, जब लीज कमेंस हुआ तो 340,000 होगा। सो एट द ईयर एंड मीन्स 30 सितंबर 20x4 को इसका अमाउंट पेमेंट के बाद और इंटरेस्ट सब जोड़कर 275,000 आ जाएगा। ठीक है, वो बात की बात है, पहले ये सॉल्व करते हैं। ROU हो गया। ओके, मैं क्या कर रही थी, ओके हाँ, नॉन क्रेडिट लाइबिलिटी। सो बेसिकली ईयर इन 31 अक्टूबर 20x3, brought forward amount is 45,000, so interest charge will be of 7% on the lease liability. So सब टोटल क्या हो जाएगा हमारा, इन दोनों का एडिशन एंड व्हाट अमाउंट वी हैव पेड, पेमेंट कितना कर रहा है 10,975 एंड सो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 375। अब बी केयरफुल, लीज के केस में हम लोग 2 साल का निकालोगे, सो ओनली वी कैन नो कि नॉन करेंट लाइबिलिटी करेंट लाइबिलिटी हमारा फर्स्ट ईयर का कितना है। ठीक है, सेकेंड ईयर का भी हमको निकालना ही पड़ेगा। so brought forward amount will be this, again we will charge the interest ये 7% से एंड सब टोटल हो जाएगा हमारा, पेमेंट विल बी सेम। ओके, सो जो सेकेंड ईयर का आपका कैरी फॉरवर्ड अमाउंट होगा, that amount will be your non-current liability for the year ended 31st October 20x3। सो मैं यहाँ पे लिखती हूँ आपका नॉन करेंट लाइबिलिटी जो होगा NCL, दैट विल बी 28,802, मैंने राउंड ऑफ कर दिया, एंड करेंट लाइबिलिटी जो होगा दैट विल बी द डिफरेंस ऑफ दिस टू अमाउंट। ठीक है, ये एंड दिस विल बी योर करेंट लाइबिलिटी। अगर करेंट लाइबिलिटी पूछता है तो 8,373, बट दे आस्क्ड अस नॉन करेंट लाइबिलिटी, सो अमाउंट इज 28,802। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। आपको इसमें आपको ये ध्यान देना होगा कि प्रेजेंट वैल्यू टोटल दिया है कि और ऑफ रिमेनिंग अमाउंट, पेमेंट एरियर में कि एडवांस में, वो देखना होगा। दोनों के केस में टेबल फॉर्मेट विल बी डिफरेंट एंड व्हाट्स द रिक्वायरमेंट डेट, ये सब आपका इंपॉर्टेंट है। सो 79 में क्या कह रहा है, IFRS 16 permits certain asset to be exempt from the recognition treatment of right of use asset. Which of the following asset leased to an entity
would permitted to be exempt. सो बेसिकली हमारा लीज इफ अगर लेस देन 12 मंथ है और 12 मंथ का है एट द डेट ऑफ इंसेप्शन और अब वो लो वैल्यू का है, हालांकि अमाउंट स्पेसिफाइड नहीं किया हुआ है IFRS 16 में, सिंपली कुछ एसेट को कंसिडर किया है लो वैल्यू व्हेन इट वाज न्यू, जब वो न्यू था। जैसे कार के केस में अभी के वैल्यू के बेसिस पे हम लोग लो वैल्यू नहीं कहेंगे, जब वो हम लोग बाई किए थे उस टाइम उसका वैल्यू क्या था उसके हिसाब से देखेंगे वो लो वैल्यू में आता है कि नहीं, हालांकि अमाउंट स्पेसिफाई नहीं किया गया IFRS 60 में। सो इफ द लीज इज शॉर्ट टर्म मीन्स 12 मंथ और लेस देन 12 मंथ और ऑफ लो वैल्यू, देन उसको हम लोग सिंप्लीफाइड ट्रीटमेंट करते हैं। हम लोग वो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट जो था ना, व्हेन वी विल रिकॉग्नाइज लीज लाइबिलिटी और ROUA, वो सब कुछ नहीं करेंगे। द सिंप्लीफाइड ट्रीटमेंट इज मीन्स whatever the lease payment we are paying, we will charge those on profit or loss in straight line basis simply. ठीक है, तो what in the question is asking us to identify the out of these four option which would be permitted to be exempt. exempt के लिए क्या चाहिए, इट मस्ट बी, इट मस्ट नहीं कह सकते हैं, मतलब इफ लीज टर्म 12 महीना और लेस देन 12 मंथ है तो वो कहेंगे, या फिर लो वैल्यू। ठीक है, सो लेट्स classify. The first option is a use of motor vehicle with a original cost of 15,000 and current fair value of 700, lease for a 24 month. अब यहाँ पे 24 month आया, so lease short life के लिए क्या होना चाहिए, 12 month और less than 12 month. So this would not be permitted to be exempt. Second option, a new motor vehicle with a cost of 15,000 lease for again 24 month. थर्ड वाला भी 24 मंथ। सो तीनों ऑप्शन वैसे ही आपका आउट है एंड लास्ट वाला 12 मंथ का है, सो दैट वुड बी कंसिडर्ड टू बी एग्जेम्प्ट अकॉर्डिंग टू IFRS 16। ठीक है, ओके 80 नंबर, what would be recorded in the Rabbit financial statement at 31st December 20x4 in respect of the lease liability? ओके, सो हम लोग को टेबल बनाना पड़ेगा अगेन एंड स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ओके, on 1st January 20x3, Rabbit acquires a new machine with a estimated useful life of 6 years under a following agreement. Okay, initial payment of 13,760 will be payable immediately. A 5 further annual payment of 20,000 will be due commencing on 1st January 20x3. सो 5 एनुअल पेमेंट है यहाँ पे, और कितने के अमाउंट 20,000, कब कमेंस हो रहा है 1st जनवरी 20x3 को। ठीक है, सो इफ ईयर इन 31st दिसंबर 20x4 है या फिर 20x3 है तो स्टार्टिंग होगा 1st जनवरी 20x3। इसका मतलब पेमेंट क्या है यहाँ पे, एडवांस का केस है। ठीक है, इंटरेस्ट रेट इज 8%, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट एक्सक्लूडिंग इनिशियल पेमेंट। ठीक है, इनिशियल पेमेंट को एक्सक्लूड करने के बाद इट्स 86,240 करते हैं अब। सो पहले कमेंस कब हुआ है लीज, कमेंस्ड 1st जनवरी 20x3। ठीक है, एंड ईयर एंड हमारा क्या हो जाएगा 31st दिसंबर 20x3, बट क्वेश्चन में 20x4 का पूछ रहा है, बी केयरफुल। व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट हमारा क्या है, इट्स 8%। पेमेंट क्या है, पेमेंट हमारा क्या है, एरियर्स में पेमेंट इन एरियर्स। अमाउंट क्या है पेमेंट का 20,000, सॉरी एडवांस का केस है, इट्स माय फॉल्ट, ये एडवांस का केस है, एडवांस। ओके, इनिशियल पेमेंट हो गया, इनिशियल पेमेंट तो इंक्लूड नहीं होगा इसमें। सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज लाइबिलिटी, लीज पेमेंट, प्रेजेंट वैल्यू लीज पेमेंट कितना है 86,240 यहाँ। ठीक है, नाउ लेट्स मेक ए टेबल पेमेंट इन एडवांस का। So here we will write down year, then brought forward amount,
देन वी विल हैव ए पेमेंट एडवांस है तो पहले पेमेंट माइनस करेंगे, देन सब टोटल, उसके बाद इंटरेस्ट, देन वी विल हैव अ कैरी फॉरवर्ड बैलेंस। ओके, सो पहला ईयर एंड कब है एंट्री करने के बाद, इट्स 31 दिसंबर 20x3, फिर सेकेंड 31 दिसंबर 20x4। क्वेश्चन यहाँ का पूछ रहा है, बट मैंने क्या बोला था, अगर नॉन करंट लायबिलिटी पूछ रहा है निकालने को, देन आपको एक साल ज़्यादा का निकालना होगा तभी पता चलेगा, वरना नहीं मालूम चलेगा। तो 20x5 मैं 3 साल का ही निकालती हूँ, हालांकि 5 साल का टर्म है शायद ना, 5 साल, यहाँ पे वो भी लिख देती हूँ। सो लीज टर्म 5 years. So what is the brought forward amount? It's 86,240, and how much amount is been paid? 20,000. And what is the subtotal? इन दोनों का sum कर दो. And what is the interest? 7%, sorry 8%. Okay, and carry forward amount will be plus of this two. ठीक है, अब इसका brought forward amount फर्स्ट ईयर का कैरी फॉरवर्ड अमाउंट हो जाएगा, सिमिलरली इसको भी कॉपी कर देते हैं, and payment term payment will be same. Oh, okay, subtotal इंटरेस्ट चार्ज कर देते हैं। ओके, एंड यहाँ पे ओके, सो निकल गया हमारा। अब द क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर 31 दिसंबर 20x4, 31 दिसंबर 20x4 ये है हमारा, लेट मी मेक इट बोल्ड। और यहाँ पे फाइनेंस कॉस्ट कितना है हमारा, 4123 है ना, और ऑप्शन में देखोगे तो एक ही है, एक ही दिया हुआ है जो ऑप्शन ए है, तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो। मान लो फाइनेंस कॉस्ट नहीं दिया होता, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी दिया होता है, उस केस में हमारा नॉन करंट लायबिलिटी है, दैट विल बी अमाउंट, एक सेकेंड, हाउ इट डिफर यार, समथिंग आई डिड ए मिस्टेक, ओ ओ ओके, हाँ सॉरी, हमारा ये एडवांस का केस है ना, सो इन एडवांस केस नॉन करंट लायबिलिटी होगा जो पेमेंट करने के बाद रिमेनिंग अमाउंट, सो दिस विल बी आवर नॉन करंट लायबिलिटी, और इन दोनों का डिफरेंस जो होगा दैट विल बी आवर करंट लायबिलिटी, दैट विल बी 20,000 ऑब्वियसली। ठीक है, सो ऐसे करके निकालना होगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइज। 81 नंबर, on 1st April 20x7, Pigeon entered into a 5-year lease agreement for a machine with an estimated life of 7 years. Which of the following condition would require to machine to be depreciated over 7 years? अब यहाँ पे बात हो रही है कि हम लोग मशीन को किस कंडीशन में 7 ईयर्स पे डेप्रिशिएट करेंगे, राइट? तो 7 ईयर्स क्या है, एसेट्स का लाइफ है, एंड लीज टर्म इज फॉर 5 ईयर्स। अब देखो, if the ownership of the asset transferred to the lessee at the end of the lease term, then depreciation हम लोग एसेट की यूजफुल लाइफ पे चार्ज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वो चीज़ ढूंढना पड़ेगा। पिजन हैज ऑप्शन टू एक्सटेंड द लीज फॉर 2 years एट ए मार्केट रेट रेंटल, नो। Pigeon has option to purchase the asset at the market value at the end of the lease, no. Ownership of the asset passed to the Pigeon at the end of the lease period, obviously अगर ऑनरशिप हम लोग लेसी यहाँ पे कौन है, पिजन, पिजन को ट्रांसफर कर देंगे एट द एंड ऑफ द लीज पीरियड, इन दैट केस द पिजन विल डेप्रिसिएट द मशीन फॉर द 7 years विच इज द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द मशीन। ठीक है, ओके, ये बुक में लिखा हुआ है, आप बुक पढ़ोगे तो इसके बारे में इसका कंसेप्ट पता चलेगा आपको। ठीक है, ओके, सो 82 नंबर, in the statement of change in equity for the year ended 31st December 20x5, what adjustment will be necessary to retain
अर्निंग ब्रॉट फॉरवर्ड। ओके, क्वेश्चन क्या है? ऑन 1st January 20x4, Badger entered into a lease agreement to lease an item of machinery for the year with a rental of 210,000 payable annually in arrears. So payment in arrears का केस है. The asset has a useful life of 5 years. At the end of the lease term, legal ownership will pass to Badger. अगर ऊपर का केस आया, देखो देखते रहो आप. The present value of lease payment at the inception of lease was 635,000 and the interest rate implicit in the lease is 12.2%. For the year in 31st December 20x4, the Badger accounted for this lease by recording the payment of 210,000 as an operating expense. This statement was discovered during 20x5 after the financial statement for the year has been finalized. Okay. सो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ है, उसने लीज पेमेंट को, उसने एक लीज लिया. फर्स्ट क्वेश्चन समझो, ठीक है? मैं एक एक लाइन करके धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप समझाती हूँ सो दैट यू कैन गेट क्लियर कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है. क्वेश्चन नंबर इज 82. देखो, लीज कब कमेंस हुआ? लीज कमेंसमेंट, स्पेलिंग रॉन्ग हो गया ना, लीज कमेंस. So it's 1st January 20x4. ठीक है? क्या चीज के लिए लीज कमेंस हुआ है? फॉर द मशीनरी एंड लीज टर्म इज 4 years. ठीक है? अब रेंटल कितना पे कर रहा है? पेमेंट अमाउंट इज 210,000 पर एनम. और ये क्या चीज में हो रहा है? एरियर्स में. एरियर समझते हो ना? एट द एंड ऑफ द ईयर. एसेट हैज ए यूजफुल लाइफ. एसेट की यूजफुल लाइफ कितनी है? यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट्स 5 years. ठीक है? और ये बोला हुआ है कि ये जो एट द एंड ऑफ द लीज टर्म जो इसका ऑनरशिप है, इट विल पास टू बैजर. बैजर कौन है? जो लेसी है. लेसी कह सकते हैं जो यूज कर रहा है ना एसेट्स को, जो ऑब्टेन किया राइट फ्रॉम लेसर टू यूज एन एसेट्स फॉर स्पेसिफाइड पीरियड. ठीक है? अब बात आती है आगे क्या है? द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, ओहो, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट एट इंसेप्शन, मतलब जब स्टार्ट हुआ 635,000. इंटरेस्ट रेट, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जा रही हूँ, अभी कुछ मैंने स्टार्ट भी नहीं किया है. 12.2%. ओके. और फॉर द ईयर इन 31st December 20x4, मतलब एट द ईयर इन. अच्छा, अब ये क्या किया? जो ये पेमेंट किया था ना, ये पेमेंट हमारा तो लीज कितने साल का है? 4 साल का. स्टार्ट कब हुआ? 1 January 20x4. ईयर एंड क्या हमारा? 31st December 20x4 हुआ इसका ईयर एंड. सो एट द एंड में इसने पूरा का पूरा लीज पेमेंट को उसने क्या किया? एज अ ऑपरेटिंग एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया. पर हम लोग लीज टेबल बनाते हैं लीज पेमेंट का. सो यहाँ पे पेमेंट ईयर ब्रॉट फॉरवर्ड. ये एडिट के केस में क्या होता है? पहले इंटरेस्ट ऐड करेंगे, देन वी विल मेक ए पेमेंट. या सब टोटल कर सकते हो पहले. सब टोटल ओके. 31st December 20. मैं 2 साल का ही निकालती हूँ. ठीक है? ओके. अब देखो यहाँ पे ट्विस्ट क्या हुआ है.
सो ब्रॉड फॉरवर्ड अमाउंट हमारा क्या हो जाएगा, जो लीज लायबिलिटी बाकी है कमेंसमेंट में, दैट विल बी 635,000। इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा हमारा, 12.20 के हिसाब से इंटरेस्ट हमारा हो जाएगा, अमाउंट 77,470। सब टोटल इन दोनों का एडिशन, एंड व्हाट इज द पेमेंट मेड अमाउंट 210,000, और कैरी फॉरवर्ड अमाउंट होगा इन दोनों का एडिशन। ठीक है, अगेन नेक्स्ट ईयर के लिए ब्रॉड फॉरवर्ड अमाउंट विल बी द फर्स्ट ईयर कैरिंग अमाउंट, इंटरेस्ट चार्ज विल बी 12.20, एंड सब टोटल आपका हो जाएगा ये। ठीक है, मैं 2 साल का निकाल लिया मैंने। अब देखो, अब आ, हम लोग पीएनएल में कितना चार्ज करेंगे, पहले ये चीज़ देखना है। पीएनएल में हमारा क्या क्या जाएगा, एक तो इंटरेस्ट, दूसरा डेप्रिसिएशन। ठीक है, इंटरेस्ट कितना जाएगा, ये फर्स्ट कौन से साल का पूछ रहा है, 20x5 का, सो 1 more ईयर निकालना पड़ेगा। ये 31 दिसंबर 20x6, नहीं नहीं इसका भी जरूरत नहीं है, लेट इट बी। करंट लायबिलिटी नॉन करंट लायबिलिटी पूछ नहीं रखा है ना हम लोगों। सो इंटरेस्ट पेमेंट 20x5 के लिए हो जाएगा ये अमाउंट, डेप्रिसिएशन हमारा हो जाएगा। अब जो कि बोल चुका है कि ये एट द ईयर एंड में हम लोग ये मशीन लेसी को ही दे देंगे यूज़ करने के लिए। और अभी अभी ऊपर क्वेश्चन देखा, अगर ऑनरशिप जो भी मशीन या जो भी एसेट हम लोग लीज पे लिए उसका ट्रांसफ़र होता है लेसी को एट द एंड ऑफ द लीज पीरियड, उस केस में जो भी एसेट का यूजफुल लाइफ होगा उसके अकॉर्डिंग वो डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा, राइट। और दूसरा चीज़, इसमें कोई इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट, एनी पेमेंट मेड इन एडवांस, या फिर एडवांस बोल रहे बिफोर द स्टार्ट कमेंसमेंट ऑफ द लीज और एट द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ लीज, ऐसा कुछ नहीं दिया है। सो आवर राइट ऑफ यूज एसेट विल बी इक्वल टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट, एंड विच इज 635,000। तो इसको हम लोग डेप्रिसिएट करेंगे लाइफ 5 साल से, क्योंकि ऑनरशिप ट्रांसफर हो रहा है। सो इसके हिसाब से हमारा कितना जाना चाहिए पीएनएल में, 18 कितना है ये आपका, 1,88,301, इसको राउंड अप कर देती हूँ। ओके, इतना जाना चाहिए टोटल अमाउंट। अब देखो यहाँ पे रिटेन अर्निंग की बात कर रहा है, तो ये प्रॉफिट जो हम लोग फाइनलाइज करते हैं एट द एंड में जाके रिटेन अर्निंग में ही तो ऐड होता है ना। बट लेसी ने क्या किया, पूरा का पूरा 200 पेमेंट एज ए ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिखा दिया, 210,000। तो कितना एक्स्ट्रा दिखाया उसने, ओके 21,699। और कुछ है क्या, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, ये कब का हुआ है इसने, सॉरी 20x4 का, इसने 20x4 में ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिखाया था, सो इंटरेस्ट हमारा 20x4 का ही होगा। ठीक है, माय फॉल्ट, मैंने वो देखा नहीं, मैंने ईयर इन के हिसाब से कर दिया। सो 20x4 में उसने पेमेंट 210,000 को एज अ होल ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिखा दिया। बट हम लोग को ऑपरेटिंग एक्सपेंस में डेप्रिसिएशन और ऑपरेटिंग एक्सपेंस की बात नहीं करते हैं हम लोग, पीएनएल में बेसिकली इंटरेस्ट अमाउंट और डेप्रिसिएशन के अमाउंट चार्ज करेंगे, एंड वो टोटल कितना हो रहा है, 2,44,4 40, सॉरी एक सेकेंड क्या कट गया क्यों, हाँ 2,04,470 हम लोग का टोटल अमाउंट हो रहा है, बोल्ड करना है इसको, हाँ। तो हम लोग एज ए ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना दिखाया, 210,000। सो कितना एक्स्ट्रा दिखा दिया एज एक्सपेंस, 5,530। इसको तो रिवर्स करना होगा ना, तो इसको ऐड करना होगा ना प्रॉफिट में, तो ऐड करने के लिए क्रेडिट करेंगे। सो यहाँ पे क्रेडिट 550,000, एंड सेम वो प्रॉफिट कहाँ जाएगा आपका, इक्विटी वाले में सेक्शन में एज ए रिटर्न अर्निंग। ठीक है, okay, so next is what will be the carrying amount of right of use assets in all statement of financial position at the end of the second year of the lease. Okay, all leases and assets with an estimated useful life of 6 years for an initial period of 5 years.
मतलब एसेट का लाइफ 6 ईयर है और उसने 5 ईयर का लीज लिया है, यही बोल रहा है क्वेश्चन। हाँ, an optional secondary period of 2 years during which nominal rental will be payable and the present value of initial period lease payment is 87,000. So यहाँ पे देखा जाए, what is the estimated useful life of assets? It's 6 year and lease term 5 years है, but वहाँ पे ऑप्शन है 2 साल एक्सटेंड होगा, ठीक है। सो मान लो कि सपोज यहाँ पे हाईली प्रोबेबल है, हाईली सर्टेन है कि ये मतलब लाइक एक्सरसाइज करेगा लेसी ये ऑफ पीरियड को, तो टोटल लीज का टर्म कितना हो जाएगा? इट्स फॉर 7 ईयर्स। तो एसेट का लाइफ ही 6 ईयर है और आपका लीज टर्म 7 ईयर्स है। तो यहाँ पे एक बुक में दिया हुआ है, जैसे मैंने ऑनरशिप का बताया ना, ऑनरशिप एसेट अगर ट्रांसफर होता है लेसी को एट द एंड ऑफ द लीज पीरियड, तो वहाँ पे हम लोग डेप्रिसिएशन एसेट की यूजफुल लाइफ के अकॉर्डिंग काटेंगे। अब इस केस में क्या करेंगे हम लोग, डेप्रिसिएशन जो चार्ज करेंगे विल बी शॉर्टर ऑफ द यूजफुल लाइफ और द लीज टर्म, ठीक है। तो शॉर्टर कौन है? यूजफुल लाइफ, सो 6 ईयर। सो डेप्रिसिएशन चार्ज विल बी, डेप्रिसिएशन जो चार्ज करेंगे वो 6 ईयर का होगा, 6 ईयर के बेसिस पे होगा। अब यहाँ पे एसेट की वैल्यू क्या है? कोई भी पेमेंट नहीं दिया हुआ है, सो इट विल बी इक्वल टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द लीज पेमेंट विच इज 87,000। सो आप 87,000 को डिवाइड कर दो 6 से, वॉट एवर द अमाउंट इज कमिंग वो आपका हो जाएगा लीज पेमेंट, लीज पेमेंट कह रही, सॉरी, कैरिंग डेप्रिसिएशन, एंड माइनस कर दो इसका 87,000 से, तो आपका आ जाएगा कैरिंग अमाउंट। ठीक है, इसको आप ट्राई करना, नहीं होगा तो लेट मी नो। और बी श्योर यहाँ पे आपका सेकेंड ईयर की बात कर रहा है, सो 2 साल का डेप्रिसिएशन काटना पड़ेगा एंड आफ्टर दैट वी विल गेट आवर कैरिंग अमाउंट फॉर द सेकेंड ईयर। ओके, कितने सारे क्वेश्चन है और 86 भी है, 87 भी है, सो अप टू 87 वी हैव, ओके 83 हो गया, 84। What entry would be made inside show of statement of profit or loss for the year in 31st December 20x6? Okay, profit and disposal. Okay. On 1st January 20x6, Sideshow sold a property for a fair value of 2 million. प्रॉपर्टी को 2 मिलियन में सोल्ड किया, ट्रांसफरिंग टाइटल टू द प्रॉपर्टी ऑन दैट डेट। लीगल टाइटल जो था, आई मीन टाइटल जो था प्रॉपर्टी का वो उसी डेट पे ट्रांसफर कर दिया। Sideshow then lease it back. Okay, ये सेल एंड लीज बैक का केस है। So lease for how many years? 5 year. Okay, paying 150,000 per annum on 31st December each year. मतलब एरियर का केस है। The present value of rental payment was 599,000 and interest rate implicit in the lease was 8%. Carrying amount of the property on 1st January 20x6 was 1.6 million and it has a remaining useful life of 20 years. Okay. सो बेसिकली हमारा क्या है, सेल एंड लीज बैक का केस है। अगर सेल हमारा ट्रांसफ़र सेल नहीं कंसीडर करेंगे तो उसको हम लोग लोन की तरह ट्रीट करेंगे और एसेट को डी रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। इफ़ इट इज़ सच में सेल हुआ है तो उसका हम लोग कैरिंग अमाउंट ऑफ प्रॉफिट वी विल कैरी आउट ऑन द प्रोपोर्शन बेसिस। कैसे मैं बताती हूँ, यहाँ पे तो पक्का ही सेल हुआ, यहाँ पे बोल रखा है कि टाइटल टू द प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो चुका है जिसको बेचा है उसको। सो क्वेश्चन नंबर इज योर 84, राइट। सो पहले डेट कब का है, ऑन 1st January 20x6। सो कितना में उसको बेचा, फेयर वैल्यू इज 2 मिलियन, ठीक है। लीज टर्म कितने का है, 5 साल का है। कैरिंग अमाउंट क्या है प्रॉपर्टी का, कैरिंग अमाउंट हमारा होगा, शॉर्टकट में लिख देती हूँ, 1.6 मिलियन उसी रेट पे। So what is the profit on disposal? Profit on disposal $0.4 million.
सो अब यहाँ पे देखो, हम लोग इस केस में मान लो कि ट्रांसफ़र ऑन सेल हुआ, तो जो सेलर होगा ना, लेसी जो लीज ले रहा है, मस्ट मेजर द राइट ऑफ यूज एसेट्स एज द प्रोपोर्शन ऑफ प्रीवियस कैरिंग अमाउंट दैट रिलेट्स टू द राइट टू रिटर्न। और इनिशियल वैल्यू ऑफ राइट ऑफ यूज एसेट हम लोग कैलकुलेट करेंगे, मैं बताती हूँ कैसे। और जो प्रॉफिट भी होगा ना, उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, बेस्ड ऑन द राइट ट्रांसफर टू द बायर लेसर। हम लोग प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल 0.4 मिलियन रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, इसको प्रोपोर्शन करना पड़ेगा। सो वैसे ही आपका बी और सी ऑप्शन विल बी आउट फ्रॉम दिस केस, राइट। तो हम लोग यहाँ पर प्रोपोर्शन कैसे करेंगे, कितना पहले प्रॉफिट आया वो लेंगे, और कितना में सेल किया हम लोगों ने, 2 मिलियन में सेल किया, इनटू अब राइट ट्रांसफर कितना है, राइट ट्रांसफर हमारा हो जाएगा, इसका फॉर्मूला आप लिख लो, बेस्ट होगा। अगर ट्रांसफर, तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख लो आपका, जो प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल होगा दैट विल बी इक्वल टू आपका राइट ट्रांसफर्ड, ठीक है, डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस इनटू जो प्रॉफिट एक्चुअल में हुआ है वो वाला इनिशियल प्रॉफिट। ठीक है, ये फॉर्मूला लिख लो। और राइट ट्रांसफर मीन्स आपका राइट ट्रांसफर सेलिंग प्राइस माइनस राइट रिटेन। और राइट रिटेन मतलब आपका, राइट रिटेन्ड मतलब आपका पीवी ऑफ लीज पेमेंट, एंड इन आवर केस इज हाउ मच, 599,000। ठीक है, सो राइट ट्रांसफर कितना हो जाएगा हमारा, सेलिंग प्राइस इज 2 मिलियन, ठीक है, एंड राइट रिटर्न कितना है, इतना 599,000। सो व्हाट रिमेनिंग जो वैल्यू आएगा वो राइट ट्रांसफर होगा। सो हमारा प्रॉफिट एंड डिस्पोजल में यहाँ पे कैलकुलेट करती हूँ, आपका राइट ट्रांसफर इज इतना डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस आपका इतना, और इनटू प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल 0.4 मिलियन। सो इसको अगर आप, ये आपका मिलियन में आया, ठीक है, ये आपका मिलियन में आया, तो प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल तो आया। अब डेप्रिसिएशन की बारी, डेप्रिसिएशन के लिए तो कैरिंग अमाउंट पता होना चाहिए, और कैरिंग अमाउंट का भी फॉर्मूला ऐसे ही आएगा, कैरिंग अमाउंट, सो यहाँ पे राइट ट्रांसफर की जगह राइट रिटेन्ड, एंड विच इज इक्वल टू योर पीवी ऑफ लीज पेमेंट, और इनिशियल प्रॉफिट की जगह इनिशियल कैरिंग अमाउंट, एंड विच इन आवर केस इज 1.6 मिलियन। सो राइट रिटेन हमारा है आपका 599,000, ठीक है, क्या सेलिंग प्राइस कितना है हमारा, 2 मिलियन, सॉरी, इनिशियल कैरिंग अमाउंट 1.6 मिलियन। सो बेसिकली ये भी आपका मिलियन में आएगा। सो डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, लीज टर्म इज फॉर द 5 years, सो 95840, ये मिलियन में है, ये भी इसको कन्वर्ट कर लेना। सो एक ही ऑप्शन बचता है आपका, फाइनेंस कॉस्ट निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, सो ऑप्शन ए, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट इज what would be the current lease liability in the Frenchco statement of financial position as at 30 September 20x4। ये इजी है, जैसे मैंने ऊपर बताया वैसे ही आपको करना होगा, just try it by yourself। Okay, 86, which of the following would not be included within the initial cost of right of use assets,
इनिशियल कॉस्ट ऑफ राइट ऑफ यूज, ओके। इंस्टॉलमेंट्स कॉस्ट ऑफ द एसेट करेंगे। एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग द एसेट एट द एंड ऑफ द लीज पीरियड, ये भी करेंगे। पेमेंट मेड टू द लेसर बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ लीज, बिफोर या एट द डेट, दोनों का हम लोग करते हैं। टोटल लीज रेंटल पेबल अंडर द लीज एग्रीमेंट, नहीं, हम लोग यहाँ पे टोटल नहीं करते हैं, rather देन हम लोग जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर लीज पेमेंट करते हैं, ठीक है। हम लोग टोटल नहीं करते हैं, हम लोग फ्यूचर लीज पेमेंट जो बाकी वो करते हैं। सो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ये नहीं इंक्लूड करेंगे। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन 87 लीज का चैप्टर के लिए। ऑन फर्स्ट जनवरी रिक्वायरमेंट क्या है, व्हाट इज द टोटल एक्सपेंस दैट शुड बी रिकॉर्डेड इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर इन द 31st December 20x4। ऑन फर्स्ट जनवरी 20x4 मीन्स स्टार्ट ऑफ द ईयर, stock enter into a sale and lease back of its property when it was sold. The asset had a carrying amount of 6 million and the remaining life of 10 years. Stark sold the asset for 7 million and leased it back on 10-year lease. Paying 1 million on 31st December each year. The lease carried at a implicit interest rate of 7%. So ये भी कुछ नहीं है, बेसिकली आपका बस ये सेम जो अभी हम लोग ने 84 में किया वैसे ही करना है इसमें। और हम लोग यहाँ पे शो करेंगे कि P&L में कितना रिकॉर्ड करेंगे एक्सपेंस। तो एक्सपेंस में क्या क्या जाएगा, फर्स्ट इट विल गो इंटरेस्ट, उसके बाद हमारा जाएगा डेप्रिसिएशन, ये दोनों अमाउंट हमारा जाएगा P&L में। सो इट्स इजी, आई डोंट थिंक ये कुछ चैलेंजिंग है, सो ट्राई करना होगा। बट यहाँ पे ध्यान क्या देना होगा, डेप्रिसिएशन का तो समझ गया कि ये कैरिंग अमाउंट निकाल के हम लोग करेंगे। जो फाइनेंस कॉस्ट कैरी करेंगे, एक सेकेंड, यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू दिया है, ओके। तो यहाँ पे बेसिकली ये ट्रांसफर इज नॉट ए सेल का केस है, तो ये ऐसा ये झंझट ही नहीं रहा, ये तो ट्रांसफर इज सेल का केस हुआ, एंड ट्रांसफर इज नॉट सेल का केस है। ये क्वेश्चन नंबर इज 87। सो यहाँ पे ट्रांसफर इज नॉट सेल। सो यहाँ पे ट्रांसफर जब सेल नहीं होता है तो हम लोग एसेट को डी रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। जो भी कैरिंग अमाउंट होगा एसेट्स का, जैसे यहाँ पे 6 मिलियन है और लीज कितने साल के लिए लिया गया, 10 ईयर्स का, इट मीन्स हमारा 30 कॉमन बोला है आंसर में लेने के लिए, तो 6000 मान लो डिवाइड बाई 10 करेंगे तो 600 का आएगा हमारा डेप्रिसिएशन। अब फाइनेंस कॉस्ट की बात करें तो जो जिस अमाउंट हम लोग ने सोल्ड किया है दैट अमाउंट विल बी कंसिडर्ड टू बी ए लोन इफ द ट्रांसफर इज नॉट ए सेल, ठीक है। यहाँ पे कहीं नहीं बोला गया है कि उस एसेट का लीगल टाइटल भी सोल्ड किया हुआ है, इसलिए इसको हम लोग सेल कंसिडर नहीं किए हैं, ठीक है। सो इसलिए जो भी अमाउंट है 7 मिलियन, इसको हम लोग एज अ लीज अमाउंट कंसिडर करेंगे और इस पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, एंड इंटरेस्ट अमाउंट इज 7%। सो 7000 का 7%, 7000 क्यों, क्योंकि यहाँ पे आंसर में बोल रखा है 30 कॉमन लेने के लिए, इसीलिए मैं 730 यहाँ पे कॉमन ले लिया, यहाँ पे भी 30 कॉमन लिया था। तो 7000 का आपका 7% निकालोगे दैट वुड बी आई थिंक 490, और 490 वो, और डेप्रिसिएशन कितना था 600, तो दोनों को ऐड कर देंगे 1090 आएगा। सो यहाँ पे सिंपली 1090 डालना, 1090 000 मत डालना क्योंकि यहाँ पे 30 दे ऑलरेडी 2 के कॉमन। सो ठीक है, सो आई होप क्लियर हो, नहीं समझ में आए तो प्लीज़ लेट मी नो, आई विल हेल्प यू आउट। सो इस वीडियो में आई विल डू ओनली दिस मच, इन नेक्स्ट वीडियो आई विल कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट चैप्टर। सो आई होप यू गाइज इन्जॉय दिस वीडियो और कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। इन केस नहीं, डू लेट मी नो, हो सके तो मैं सिर्फ लीज का कॉन्सेप्ट का वीडियो बना दूंगी, बट लेट मी नो एटलीस्ट फर्स्ट है कि नहीं। सो वीडियो कैसा लगा डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, एंड पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू।